Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the our topic relevant to the analysis of financial statement and uh, from this class, from this session, from this recording, we will start our analysis. It means there will be numerical and practices. So you should be interactive. You have to sit down with your pen and copy or register. So when we will go towards the practice and numericals, you will solve your numericals on your uh, copy, then you will share the answer on the chat box. So let's start. Analysis of financial statement, AFS. This also called financial statement analysis. So both are same. There are multiple types of analysis. Multiple type of analysis. So we will go towards the ratio analysis first, and within the ratio analysis we have five categories of ratio analysis. In each category we have multiple analysis. So we will discuss about the multiple type of analysis. Then we can practice of these type of analysis. So ratios help us evaluate financial statements. Previously, you have done the accounting courses. You know that there are multiple type of financial statements. Number one financial statement is the income statement. We also called profit and loss statement. Similarly, second one is the balance sheet, and last one is the cash flow analysis. So cash flow statements. So by the help of these financial statements, especially and specifically by the help of the income statement and balance sheet, we can perform multiple ratio analysis, and we know the position of the business, your own business, your employer business, or so on. So there are multiple type of stakeholders who do the ratio analysis. We can divide the ratios into five categories. There are multiple type of categories. So first of all, we have liquidity ratio. Liquidity ratios, which gives an idea of the firm's ability to pay off their debts, finance, their debts that are maturing within a year. Current liabilities. It is also called current liabilities. We have to pay within this year, within this financial year. This will be called the liquidity ratio. We will discuss one by one each type of different ratio types, ratio analysis. I'm also joining by my mobile, so this will inshallah also help. The second type is asset management ratios, which gives an idea to how efficiently the firm is using its assets. Asset management ratios also. This is very easy to understand because the name is also including asset management. Debt management ratios also easy to understand, which gives an idea of how the firm has financed its debts, assets, as well as the firm's ability to repay its long-term debts. It is also related to the debt, long-term debts especially, specifically. Profitability ratios, profit relevant, which gives an idea of how profitability the firm is operating and utilizing its assets.
and market value ratios, which gives an idea of what investors think about the firm and its future the prospectus. So already in the last class we discussed that on the on your book 15 edition 14 edition, this is on page number 120, and multiple type of ratios we also saw, but from this class we will go towards the practice of numericals, and this numerical will also be done by yourself. So first of all, liquidity ratio, which gives an idea of the firm's ability to pay off debt that are maturing within a year. Current liabilities we also call. For example, we have the question about the primary liquidity ratio is the current ratio, which is calculated by the dividing current assets by current liabilities. For example, we have current assets 100,000, 100 total $1,000 current assets. 310 is the current liabilities, and we have the formula. And also we have confirmed that we don't have the formula sheet in the in the paper. So you have to remember the formulas, specifically specific formulas, special formulas like this current ratio. So current ratio is very simple formula: current assets divided by current liabilities. Uh, if we put the data we have available here, so we can calculate the current ratio very easily by the we have to calculate and interpret the answer. So we will practice both of them. So current ratio, we have we must remember the formula of the current ratio: current assets divided by current liability. And okay. Adi ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮೈಕ್ ಓಪನ್ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಮೈಕ್ ಇದೆ Hello. Achha. ಹೇಗಿದೆಯಾ Okay. So we can calculate the ratio by dividing current assets divided by current liabilities. So we have put the amounts. Current ratio, current assets are $1,000 and divided by current liabilities 310 is equal to 3.2 times. 3.2 times. When we will go towards the interpretations, so how we can interpret about this? Say, what is the interpretation? Anyone can inform? What is the interpretation? हम कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं? Simply, we will say the results in our words that the current ratio is 3.2. It means the company have 3.2 times more assets than its liabilities. And we interpret that the company has solid position, specifically when we will compare with the industry average, which is 4.2, we can say this is against lesser than the industry average, but overall it is good. So when we do the current ratio analysis, so we can practice by the question. But current ratio. अच्छा, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये करंट एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल $5,000, और करंट लाइबिलिटीज जो है वो हमारे पास $1,550 है. तो व्हाट विल बी द करंट रेशो?
और इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे जी। कोई इस हवाले से आप, बल्कि 5 मिनट का टाइम है, इसको अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो है, इसको अज्यूम कर लें कि $5,000 हमारे पास करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज $1,550 हैं। तो किस तरह हम इसके जो है वो करंट, सबसे पहले तो कैलकुलेट करें करंट रेशो क्या है। फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन एग्जाम में आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले करंट रेशो कैलकुलेट करें और उसके बाद जो है फिर उसको इंटरप्रेट करें और उसको इसी से कंपेयर करके देखें कि अभी जो करंट रेशो बन रहा था इसके मुकाबले में ये बेहतर है या बेहतर है, क्या सिचुएशन है। 3.22 हम आपकी की तरफ से आया है। तो बाकी लोग देखें इसको, यही रिस्पॉन्स आ रहा है या कोई और बन रहा है। इट्स सेम, सही। करंट रेशो 3.2 सही है। सही है। अच्छा, ये जो है सेम इसलिए आया, देखिए मैंने सवाल जो है अभी अभी बैठे बैठे जबानी बनाया है ना, किस तरह बनाया है कि करंट रेशो को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 बोल दिया, और इसी तरह करंट एसेट्स को भी 5 से मल्टीप्लाई किया और करंट लाइबिलिटीज को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हाइपोथेटिकली जो सवाल बनाया है, तो ये सेम इसलिए आया है कि नॉर्मली रेशो सेम ही रहेगा जब आपका दोनों साइड का सेम हो जाए। तो चलें, एक प्रैक्टिस हो गई। अब इसके इंटरप्रिटेशन कोई भी 2-3 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ चैट बॉक्स में लिखें। इंटरप्रिटेशन क्या है, जस्ट हमारी आ, इसी बात को अपने अल्फाज में सिंपल इंग्लिश में कह देना, ये इंटरप्रिटेशन है, वजाहत कह सकते हैं। तो आप इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, करंट कंपनी हैव $3.2 फॉर ईच एवरी करंट लाइबिलिटी पेमेंट, डॉलर पेमेंट। तो ये जो है हमारा करंट, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। सही है। अगर इसके कंपैरिजन में कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे यहाँ अभी सामने स्लाइड्स में इंडस्ट्री एवरेज है, तो हम इसकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन में कुछ नहीं है तो हम इसको एज इट इज जाने दे सकते हैं। तो अब सर ये इंटरप्रिटेशन कोई रिपीट स्टूडेंट कीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में लिख के दिखा दे। तो सिंपल ये जो है इंटरप्रिटेशन, इसी को कहते हैं। कोई उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है। इंटरप्रिटेशन। अच्छा चले, मेरे ख्याल में इंटरप्रिटेशन इतनी मुश्किल लग रही है आपको कि लिखना नहीं आ रहा। तो आगे मूव करते हैं हम। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो। सही। फर्दर इसके सर आप जो है मल्टीपल, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। ये सारे रेशोज जब सर हमारे खत्म हो जाएं, आज की क्लास में हो जाएं, आगे आने वाली क्लासेस में किसी में खत्म हो जाएं, तो उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ भी जा सकते हैं, वरना आपको सर एलएमएस के थ्रू भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सही। सर थोड़ा आप सा हम इसको इम्पोर्टेंट पहले डिस्कस टॉपिक्स करेंगे बता वन बाय देना वन, और उसके बाद जो है फिर जाएंगे। अच्छा, ये स्लाइड्स भी हो सकता है आपको मिल जाए। इसमें जो सवाल है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा फाइनेंस से घबराते हैं, वो भले इस क्वेश्चन को सॉल्व ना भी करें। 4.19 जो है वो करंट रेशो का जो बज़ाहिर बहुत सिंपल नज़र आता है, इसका उन्होंने रिवर्स कर दिया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चैलेंजिंग फाइनेंस में जो है थोड़ा सा चैलेंजेस बर्दाश्त करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। सही। और बाकी जो है वो हम रेलिवेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। ये चूंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो हमें इसका ख्याल रखना है कि हमें प्रोफेशनल और एक सिस्टमेटिक वे में रहना है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें हमें रिकॉर्ड नहीं करानी जो फिर बाद में प्रॉब्लम्स का बायस बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप सिंपल जो है वो अपनी कोर्स आउटलाइन को फोकस करेंगे, उसमें जो चीज़ें हैं उसी के हिसाब से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वी हैव
quick or acid test ratio. We have quick and acid test ratio, so we can uh, see the formula of quick and acid test ratio, and then we will practice of this. Similarly, as formula, we have current assets minus inventories एंड अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को यानी करंट लाइबिलिटीज से हम डिवाइड करेंगे क्विक एसेट्स को, जिनमें से इन्वेंट्रीज को माइनस किया जाएगा। तो ऑलरेडी जो हमारे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी उसी को आगे बढ़ाते हुए करंट एसेट्स को जो है वो हमने माइनस कर दिया, इन्वेंट्रीज को माइनस कर दिया, तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ गई जो कि 310 थी। करंट लाइबिलिटीज अपनी जगह है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। करंट एसेट्स है 1000 और इन्वेंट्रीज हैं 615। तो 1000 में से 615 615 निकले, तो हमारे पास जो जवाब रह गया 385। तो 385 अपॉन करंट लाइबिलिटीज एज इट इज आ गई, तो 310। अच्छा, अभी प्रीवियसली जो हमने बनाया था, जो सवाल खुद से सॉल्व करना था, उसमें जो है 5000 था, और 5000 में से अगर हम 3000 माइनस कर दें तो क्विक रेशो निकालें। ये मीटिंग 10 मिनट का क्वेश्चन आया कि बंद होगी 10 मिनट में, तो जैसे ही बंद हो उसके बाद दूसरा लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस लिंक से क्लास 2 सेशन 2 के लिंक से जो है वो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो जब तक जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, करंट एसेट्स 5000, इन्वेंट्री 3000, करंट लाइबिलिटीज 1550, 1550। हम्माद खान ने जल्दी से कैलकुलेट करके बताया 1.29 इज इट करेक्ट। तो आप इसको अपने पास जो है वो दीगर लोग भी क्रॉस चेक कर लें। सिंपल सा, अगेन फॉर्मूले में डेटा पुट करना है, एग्जाम के तक आपको फार्मूला याद रखना है, तो बस इतना सा काम है, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। जी, और कोई इस सवाल को कर रहा है? जी माशाल्लाह, मुकद्दस नईम ने रिस्पॉन्स किया, सेम है, सही है। पेपर पैटर्न एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दें। अगेन मैंने कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको कोर्स आउटलाइन और पेपर पैटर्न जब आखिरी की क्लासेस में हम देखेंगे। अभी हमारी 6 क्लासेस, यानी हमारी काफ़ी क्लासेस बाकी हैं इस वीक की, ओवरऑल जो भी हैं तो उसमें देख लेंगे। अभी फिलहाल फोकस करें जो आपको काम दिया है मोहम्मद इर्तिजा। ये क्विक रेशो सॉल्व किया आपने? करंट एसेट्स 5000, इन्वेंट्री 3000, करंट लाइबिलिटीज 1550। व्हाट इज द क्विक रेशो? इन्वेंट्री का मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जी बिल्कुल, इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड की जाती है अपने बुक्स के अंदर, तो उसी को लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात नहीं हो रही। इन्वेंट्री का मतलब जो भी आपकी इन्वेंट्री की अमाउंट्स आपके ट्रायल बैलेंस में आ रही है, आपकी बैलेंस शीट से हम अमाउंट ले रहे हैं, तो बैलेंस शीट से जो अमाउंट आ रही है इन्वेंट्री की, वो नॉर्मली कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। चलें, अभी ये 9.9 मिनट बता रहा है, तो हम इतनी देर में एसेट वाले उसको भी आगे बढ़ा लेते हैं। एसेट मैनेजमेंट रेशो के अंदर जो हमारे पास रेशोज हैं वो 4 तरह के हैं, सही है। अब करंट रेशो के अंदर जो हमने डिस्कस किए हैं, यानी प्रीवियसली जो हम डिस्कस करके आए हैं, इसमें हमने करंट रेशो और क्विक रेशो दो ही डिस्कस किए हैं, और एक लिहाज से दोनों ही आपके बड़े काम के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सही है।
तो आपकी जिंदगी में काम आ सकते हैं करंट रेशो और क्विक रेशो। सही। अब ये वाला जो एसेट मैनेजमेंट रेशो है, इसमें टोटल एसेट टर्नओवर और इसी तरह डे सेल्स आउटस्टैंडिंग डीएसओ, ये जो है ये दो चीजें आप कह सकते हैं कि ज्यादा काम आने वाली हैं। वैसे भी इन्वेंट्री टर्नओवर और बाकी चीजें भी काम आने वाली हैं, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे गो थ्रू कर सकते हैं। तो एसेट मैनेजमेंट रेशो के अंदर चार तरह के रेशोज हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इन्वेंट्री टर्नओवर, टर्नओवर का ताल्लुक इसको याद रखने के लिए मैं आसान सा यानी फॉर्मूला, अगर आपको बिल फर्स्ट खुदा न खास्ता भूल भी जाए, तो आप एक टेक्निक लगा के जो है वो इसको जहन में ला सकते हैं। टर्नओवर का जहां से भी ताल्लुक होगा, टर्नओवर कहते हैं एक लिहाज से आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि टर्नओवर सेल्स से ताल्लुक रखता है। सही। टर्नओवर का ताल्लुक सेल्स से होता है। तो जहां जहां टर्नओवर की बात है, जैसे इसमें देखें पहले फॉर्मूले के अंदर टर्नओवर है तो नीचे इन्वेंट्रीज है। दूसरे फॉर्मूले के अंदर जो है यानी अब अबव साइड पे सेल्स है, टर्नओवर की बात है और ऊपर सेल्स है। इसी तरह दूसरे में टर्नओवर की बात बजाहिर नहीं है, तो सेल्स कहीं और है। लेकिन तीसरे में टर्नओवर की बात है, सेल्स अपसाइड है। इसी तरह चौथे में टर्नओवर की बात है, सेल्स अपसाइड है। तो टर्नओवर के हवाले से याद रख सकते हैं टर्नओवर का ताल्लुक सेल्स से है। सेल्स के जरिए हम टर्नओवर मालूम करते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर में टर्नओवर यानी सेल्स ऊपर है और इन्वेंट्री नीचे है। और इसी तरह फिक्स एसेट टर्नओवर में टर्नओवर यानी सेल्स अपसाइड है, फिक्स एसेट्स डाउन साइड है। इसी तरह टोटल एसेट टर्नओवर में सेल्स यानी टर्नओवर अपसाइड है और टोटल एसेट्स डाउन साइड है। तो इस चार में से तीन फॉर्मूलाज तो याद करना आपको समझ लें बिल्कुल आसान हो गया। अब डे सेल्स आउटस्टैंडिंग में, सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि रिसीवेबल्स, कितने दिन में आपको आपके रिसीवेबल्स वसूल होते हैं, कितने दिन में। तो दिन का ताल्लुक से बाय डिफॉल्ट हम 365 दिन लेते हैं, आमतौर पर ये मेंशन होता है, नहीं भी मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट आप 365 दिन का साल लेते हैं। एक साल में 365 दिन। तो रिसीवेबल्स जो है वो आपके कितने हैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर, और एनुअल सेल्स आपकी कितनी है। तो इसके जरिए हम ये फॉर्मूला बना के रिसीवेबल्स अपॉन एनुअल सेल्स और डिवाइड बाय 365, इसके जरिए हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। अब डे सेल्स आउटस्टैंडिंग की इन्होंने जो है ये 4.1 के अंदर जो है ये एग्जांपल ली है। अभी भी हमारे पास 6 मिनट हैं, तो हम इंशाल्लाह ना सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे बल्कि एक आध क्वेश्चंस प्रैक्टिस का खुद से भी बना सकेंगे। अब इसमें डे सेल्स आउटस्टैंडिंग में इन्होंने बताया है बकर ब्रदर्स हैज डीएसओ ऑफ 40 डेज। डीएसओ हमारे पास है ऑलरेडी, हम मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में ये वाला सवाल कर चुके हैं। तो इसको हम जस्ट यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास सॉल्व हुआ हुआ है। अगेन इसमें जो है वो 800,000 जो है इसका जवाब है। अगेन जस्ट हमने क्या किया, फॉर्मूला जहन में रखा हुआ था वो रखा, उसमें डेटा पुट किया और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर चले गए। ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, तो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन। एसेट मैनेजमेंट रेशोज के अंदर टोटल एसेट टर्नओवर रेशो है हमारे पास, इसी तरह जो है इसको डेटा पुट करके हम लेकर आ जाएंगे। अगेन इसमें जो है वो फर्दर में टाइम अभी इसमें नहीं लगा रहा। डेट मैनेजमेंट रेशियोज की अगर हम बात करें तो डेट मैनेजमेंट रेशियोज से जो है वो हम चलेंगे भी इसमें कवर कर लेते हैं। डेट मैनेजमेंट रेशियोज के अंदर जो है वो अगर आप देख लें, इसमें टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, टोटल डेट अपसाइड पे आ गया। और टोटल कैपिटल से मुराद यहाँ पर जो आपने डेट प्लस इक्विटी इसको लेते हैं टोटल कैपिटल के तौर पर। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने इसको विद इन क्लास भी डिस्कस किया था। सही। तो इसका मतलब क्या है, इसके इंटरप्रिटेशन की तरफ जब हम जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 47.8% जो है ये इनका डेट टू कैपिटल रेशियो है। यानी इनका पूरा बिजनेस है, अगर एसेट्स हैं 100 रुपए के, तो उसमें से 47% एसेट्स जो है वो डेट के थ्रू फाइनेंस किए गए हैं। ये जो है ये इसका इंटरप्रिटेशन है, इसकी वजाहत है। यानी इसकी आम अल्फाज में, आम लैंग्वेज में, विद इन इंग्लिश जो है वो हमें इसको इंटरप्रेट करना होता है, इसकी वजाहत करनी होती है। इसको हम यहाँ देख सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 4.2 की। लेकिन डेट मैनेजमेंट रेशियो टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, अगेन इसका जो है फॉर्मूला हमारे पास है और इसके जरिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, टी आई ई टाइम्स इंटरेस्ट अर्न कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास है। अगेन इसके लिए जो है ये हमारे पास प्रैक्टिस
थी, जिसको अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी के ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको हम देख लेते हैं। ये आपका बिजनेस रन करता है किस लिए? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डिफरेंट रेशोज हैं, और उनमें अगर हम यहाँ पर देखें खास तौर पे ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, सही, प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल आसान। प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम आपकी कितनी है सेल्स के मुकाबले में, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है। इसका क्वेश्चन अगर यहाँ पर मौजूद है तो हम इसको सॉल्व करते हैं, अदरवाइज इसको जो है वो अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन का क्वेश्चन अगर हम खुद से यहाँ बना लें, और उसमें हम देखें प्रॉफिट मार्जिन, नेट से नेट इनकम, अज्यूम दैट यू हैव नेट इनकम ऑफ $10,000। आपकी नेट इनकम जो है $10,000 है, और सेल्स जो है वो 100,000 सेल्स है। तो प्रॉफिट मार्जिन क्या है? $10,000 आपकी नेट इनकम